Hello, good morning to all children. Uh, Good morning to all children. We'll study today the aggregate demand and the related concept. Okay, the next topic covered in today video is the type of propensity to save. Okay, before this we have completed the consumption function. I am Suman Bharadwaj of economics teacher. Now saving function. Saving function we have to understand before this, starting the types of propensity to save. What is saving function? What is saving function, children? Saving means in Hindi we say bachat, okay, and income means I, whatever we are earning, okay, whatever the individual is earning and they spend money on consuming the goods and the services. In consuming the goods and the services is the income spent, okay, that is your consumption part, and the remaining part left after consuming the goods is the saving, right? Now, like consumption, saving is also a function of income. Your first function of income Y is your consumption, and second function of income is your saving. Your consumptions always shows increase in income and saving shows minus, okay. Previously we have studied. Now saving also depends upon the level of income. Saving is the excess of income over consumption expenditure. इसका मतलब क्या है कि जितना भी मनी हमने अर्न किया है उसमें से हमने पैसा जो खर्च कर दिया है कंजप्शन के बाद, जितने भी रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास इनकम की बची है, that is your saving, right? After spending the income on consumption, the money left with the individual is the saving. In Hindi we say bachat. What we say saving means bachat. Saving function refers to the functional relationship between saving and your national income. Functional relationship means increase in income and your decrease in income. Y denotes income, right? This is the functional relationship or numerical relationship. Now see children, there is a formula of saving, that is S. S stands for saving, Y stands for national income, and F is your functional relationship, means increase in income or decrease in income, right? Saving or propensity to save shows the saving of household at a given level of income during a time period. Alternately, propensity to save shows the different levels of saving at the different levels of the income. What does it mean? It means when income is increasing, इसका मतलब क्या है कि जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है, और कंजप्शन भी इंक्रीज हो रहा है, और पूरा कंजप्शन करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बच रहा है,
इनकम में से दैट इज योर सेविंग. ओके, तो दिस इज इंक्रीज इन सेविंग. इन केस अगर हमने अर्न किया है कुछ, ओके, इफ़ वी हैव अर्न समथिंग, अगर हमने कुछ कमाया है, वो जितना भी कमाया है सारा खर्च हो गया है, तो देयर इज नो सेविंग. वॉट एवर वी हैव अर्न एंड वी हैव completely consumed, nothing is left for saving. ओके, ऐसी भी हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में लोगों को सिचुएशंस बियर करनी पड़ती हैं. Alternately, propensity to save the show the difference of saving at the different levels of the income. Okay, now next we understand. Okay, now we understand with this table and the diagrammatic representation when the income is when the saving is increasing and when the consumption is decreasing. Okay, now see children, this is the income which starts from 0 to 600. Now first we will see, we are not earning anything but we are consuming the goods. Okay, we can take the example of students. Okay, स्टूडेंट्स अर्न नहीं कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स अर्न कर रहे हैं और उनको दे आर कंज्यूमिंग ऑल द गुड्स विच दे नीड. ओके, सो द सेविंग इज योर माइनस. हाउ दिस फिगर कम? ओके, सेविंग हम कैसे निकालेंगे? सेविंग निकालेंगे जो भी हमने इनकम है, इनकम में से हमने कंजप्शन को माइनस कर दिया, तो हमारा क्या निकला? सेविंग. जितना हमने कमाया था, कमाने में से खर्च कर दिया, खर्च करने के बाद भी हमारे पास कुछ रुपए बचे हैं, जो बचे हुए रुपए हैं वो क्या हैं? आपके सेविंग. राइट बेटा? नाउ सी इन द फर्स्ट फिगर योर इनकम इज 0 माइनस 40. ओके, दिस इज योर प्लस 40, तो माइनस 40 आ गया. राइट? इन द सेम वे यू विल कैलकुलेट 100 में है और 120 आपके खर्च हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है? कमाए आपने 100 रुपये हैं और 120 खर्च कर दिए, मतलब 20 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किए हैं. तो इन 20 रुपये जो एक्स्ट्रा आपने खर्च किए हैं, इसका अरेंजमेंट कहाँ से हुआ? आपका प्रीवियस सेविंग से. देन यू विल माइनस 100 माइनस प्लस 20, तो माइनस 120 निकल कर आ गया. इन द सेम वे योर थर्ड पॉइंट बेटा, 200 आपने अर्न किया एंड 200 कंज्यूम कर लिया. जितना कमाया था उतना खर्च कर दिया, तो क्या आया? 0. ओके, कुछ बचा ही नहीं सेव करने के लिए फ्यूचर के लिए. नाउ नेक्स्ट योर 300 आपने अर्न किए, 280 खर्च कर दिए. ओके, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पर, तो 20 रुपीज़ आपके बचे. नाउ 400 आपने अर्न किए, 400 में से 360 कंज्यूम किए आपके हाउस होल्ड ने, तो माइनस कर दिए, तो आपका फिगर निकला 40. इन द सेम वे 500 माइनस 440 इज इक्वल टू 60. राइट? नाउ योर 600 minus 520 is your 80. Okay, this is this is the way you can calculate the saving. Okay, जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करोगे तो देयर व्हाट्स हैपन, only this figure is given, this giver is given, and directly you have to calculate, okay, your consumption function, okay, consumption function and your saving function. तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए you will use this formula first. Many times what's happen, saving is given and your income is given but the consumption is not given.
ओके, तो इस फॉर्मूले को प्लस माइनस करके आप कंजप्शन निकाल सकते हैं, सेविंग निकाल सकते हैं या इनकम निकाल सकते हैं। ओके बेटा, नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टेबल बेटा। Now the diagrammatic presentation we will see. The diagrammatic presentation में सेविंग हमारी से इधर जा रही है, दिस इज योर सेविंग माइनस में गई आपकी, ठीक है, दिस इज द सेविंग, ये जो कि माइनस में जाती है आपकी। हम एक्स एक्सिस पर इनकम को शो करते हैं बेटा और वाई एक्सिस पर सेविंग को शो करते हैं, राइट। अब जब नेगेटिव में गई है आपकी सेविंग तो नीचे आएंगे, यहाँ तो आपके प्लस प्लस के फिगर हैं, यहाँ माइनस का आएगा, ठीक है। चलो अब इस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को पॉइंट्स वाइज हम स्टडी करते हैं। Now important observations from the saving schedules and the saving curve. Starting point of saving curve, तो saving curve आपका कहाँ से start होता है, SS, okay, saving curve SS starts from the point S on the y axis. Now back we are going and indicating that there is a negative saving, okay. Negative savings means your autonomous consumption, okay, your zero level of income when national income is zero, okay. We have choose the example of students also so that you can understand. Now next beta, see the saving curve will have a negative, okay. नेगेटिव में शेविंग नेगेटिव में शो की जाती है, कंजप्शन आपका प्लस में, एस शोन इन नेगेटिव एंड योर कंजप्शन शोन इन पॉजिटिव, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बेटा स्लोप ऑफ सेविंग कर्व, कैसा रहता है स्लोप, एस एस हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप विच इंडिकेट्स द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द सेविंग एंड इनकम। हम क्या दिखाते हैं, इट शोज द पॉजिटिव, सेविंग कर्व का स्लोप आपका कैसा रहेगा, पॉजिटिव। क्यों रहेगा, क्योंकि इसमें रिलेशनशिप आपका सेविंग और इनकम का रहता है कि आपने मनी अर्न किया, उस मनी अर्न में से कंज्यूम भी कर लिया, कंज्यूम करने के बाद कुछ अमाउंट आपके पास रिमेनिंग है, बचा हुआ है, वो आपने सेव कर रखा है अपने फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, राइट। नाउ योर ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब वो होता है जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करती हैं, एक ऐसा पॉइंट। तो यहाँ हम डिमांड एंड सप्लाई न देखकर यहाँ हम कंजप्शन और सेविंग को देखेंगे। नाउ सी व्हेन एस इज इक्वल्स टू 0, सेविंग कर्व्स क्रॉसेस द एक्स एक्सेस, the saving curve crosses x-axis at the point R, which is known as break-even point. At the point saving is 0 on consumption is equals to income. इसका मतलब क्या है, जितना आपने कमाया सब खर्च कर दिया, सेविंग आपकी कुछ नहीं हुई, राइट। This table 7 point break even points occurs corresponding to the income 200. Now we will go back. I will show the diagrammatic presentation. Okay. See,
200 रुपीज़ अर्न किए, 200 करोड़, 200 पूरे खर्च कर दिए। दिस इज द लेवल व्हेन एस इज इक्वल्स टू 0, राइट। जितना कमाया सब खर्च कर दिया, कुछ बचाया ही नहीं फ्यूचर के लिए, ठीक है। दिस इज द सिचुएशन। So this is when S is equals to 0। ये कौन सी सिचुएशन, जितना कमाया सब खर्च कर दिया, कुछ बचाया नहीं फ्यूचर के लिए। दिस इज S is equals to 0। नाउ पॉजिटिव सेविंग, पॉजिटिव सेविंग आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इज पॉजिटिव। इस व्हाट यू अंडरस्टैंड, हम एक ऐसे लेवल पर पहुंच गए हैं कि जहां पर आपने इनकम में से कंज्यूम किया, कंज्यूम करने के बाद हाउस होल्ड सेक्टर ने सेविंग भी करी है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज पॉजिटिव, ओके। खर्च भी कर लिया, बचा भी लिया फ्यूचर के लिए। सो दिस इज योर पॉजिटिव सेविंग, राइट। नाउ नेक्स्ट, okay, this is your saving function, this is your saving function, and I hope you understand the function of saving and consumption, and we have do the comparison of consumption and your saving. Now in short revision, we'll compare the consumption function and your saving. अभी हम पूरे को हिंदी में समझा देते हैं ताकि बच्चे भूले नहीं। कंजप्शन फंक्शंस में क्या रहता है, आपका इनकम इंक्रीज और डिक्रीज रहेगी, ठीक है। सेविंग फंक्शन में आपका क्या रहेगा, इनकम खर्च भी की जाएगी और बचाई भी जाएगी फ्यूचर के लिए, ओके। अगर आपने फ्यूचर के लिए बचाई है तो वो सेविंग हो जाएगी, कंज्यूम भी की जाएगी, सेविंग भी की जाएगी, राइट। अगर हमें सेविंग का अमाउंट निकालना है तो सेविंग हम कैसे निकालेंगे, सेविंग इनकम में से हमने खर्च कर दिया, ओके, इनकम में से हमने खर्च भी कर दिया और खर्च करने के बाद हमने इनकम में से खर्च भी कर दिया और खर्च करने के बाद जो सेविंग का अमाउंट है, मीन्स योर एस इज इक्वल्स टू वाई माइनस सी, राइट। सेविंग हम कैसे निकालेंगे, सेविंग डायरेक्ट नहीं पूछी जाती है, तो डायरेक्ट सेविंग निकालने के लिए हमें इनकम में से कंजप्शन को माइनस करना पड़ता है, ठीक है। अब सेविंग हमेशा ठीक है सेविंग माइनस में शो की जाती है, ठीक है, सेविंग माइनस में शो की जाती है और सेविंग का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इस तरीके से रहता है, आपका माइनस में शो की जाएगी, किसमें, जैसे इधर माइनस में इस वाले लेवल को भी क्रॉस कर जाएगी जो कि माइनस, तो आपका ये इस तरीके से कर्व आ रहा है, तो दिस इज़ योर सेविंग, ठीक है। क्योंकि पुराने बचे हुए पैसों में से
हमने उस समय रुपयों का इस्तेमाल कर लिया जब हमने पूरे पैसे खर्च कर दिए थे और हमें ज़रूरत थी ज़्यादा पैसे की। तो हमने जो अपनी पिछली बचत में से करंट रिक्वायरमेंट को मीट कर लिया। तो हमने अपनी करंट रिक्वायरमेंट को मीट कर लिया। करंट रिक्वायरमेंट को मीट कर लिया। हमने अपनी करंट रिक्वायरमेंट को मीट कर लिया बेटा। ओके, I hope you understand the function of saving. Okay, thank you.